Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So in the previous video I have given you the explanation of chapter 5 arithmetic progression of class 10, and in this video we are going to solve exercise 5.1 related to that previous introduction. So let's start with the question number 1 fast. Okay, so this is question number 1, first point, and in this question we have to give our answer on the basis of that the situation that has been given to us. So few situations they have been given and we have to say that the particular situations are in the form of AP or not. If it is, then why. Okay, so this is first point, question number 1. So let's see what this point is all about. The taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. So first, for first kilometer taxi fare, for first or we can say for 1 kilometer it is rupees 50. Okay, and after this they said that rupees 8 for each additional kilometer, and for 2 kilometer it will be rupees 15 plus 8, that will be rupees 23, right? For 3 kilometer what it will be, rupees 15 plus 8, right, for 2 kilometer. And for 3 kilometer again we will do addition of rupees 8, because what they have told us ki for rupees 8 for each additional kilometer, when the kilometer will be added, then you have to add rupees 8 as a taxi fare. So this is like, then what will be the answer here? 31. Okay, so we will not take more kilometers. On the basis of that also we can take out our answer, means we can say that this is in the form of AP or not. If you want to take out, you can take more kilometers. Then rupees 15 plus 8 plus 8 plus 8. For 4 kilometer again we will do 8. Now this is the form that I have written here. You can also write or 15 plus 8, 23, right? 15 plus 8 plus 8. In place of this you can also write 23 plus 8, that will also give you rupees 31. And here in place of this you can also write rupees 31 plus 8, so it will give you rupees 39, right? So it is like A plus D, A plus 2D for the next term, A plus 3D for the next, A plus 4D. In that manner you can also solve. Now we have got our values, means we have got the fare till 4 kilometers. Now the next point, are they in the form of AP or not? So for this क्या बताया था मैंने, like हम पहले लिख लेते हैं. First 15, rupees 15, next is rupees 23, next is rupees 31, next is rupees 39. So if this is A1, A2, A3 and A4, so what is the procedure of to find out the AP? Obviously, first of all we have to find out the common difference. Once we find out the common difference, and if it is same for all, it means it is in the form of AP. So common difference, how we will find out? A2 minus A1, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, A2 minus A1, and here should be equals to A3 minus A2 should be equal to A4 minus A3. ओके, चलो निकालते हैं अभी. सो सबका देखो, अभी हमने 8 ऐड किया था, जब तुम माइनस करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 8. ओके, बट स्टिल लेट्स डू इट. 23 minus 15, it will give you 8, should be equals to 31 minus 23, it will also give you 8, and
should be equals to 39 minus 31. It will also give you 8. So here the common difference is equal. Hence this situation, जो भी आपकी बुक में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस तरह से आप लिख सकते हो. दिस सिचुएशन hence this situation is in the form of AP. Okay, because the common difference is equal. आप उसके आगे इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हो. ओके, सो ये समझ में आ गया. अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें बाकी सारे पता करने हैं. तो लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. ओके, okay, so this is our question number, we can say point number 2, which is the amount of air present in a cylinder. Okay, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ठीक है, चलिए, मतलब कि एक सिलेंडर है अपना. ओके, सपोज देयर इज अ cylinder. Okay, there is a cylinder. In this कुछ air है अपनी, amount of air, यानी कि when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें वॉल्यूम V है, मतलब अगर टोटल, अगर मैं एयर की बात करूँ जो अमाउंट प्रेजेंट है अगर वो V है, तो अगर मैं उसमें से वैक्यूम पंप हर बार में कितना निकाल रहा है, 1/4 ऑफ द एयर निकाल ले रहा है. जितना भी उसमें बचा है उसका 1/4 वो हर बार में निकाल रहा है. ओके, अगर अभी ये V है तो V में से मैं 1/4 ऑफ V अगर मैं निकाल लूँ तो कितना मेरे पास बचेगा? V में से 1/4, क्योंकि जितना भी है उसमें से 1/4 में निकाल लूंगी. तो 1/4 ऑफ V अगर मैं निकालूंगी तो ये तो आपको पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं. इट विल बी 4V minus V, it will be 3V/4. फर्स्ट बार में मैं अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसको हम अच्छे से लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे 3V/4 एयर बचती है. कब? जब मैं पूरे में से 1/4 निकाल लेती हूँ. ठीक है, अब बोला है कि जितनी भी बचती है, ठीक है, जितनी भी बचेगी फिर उसका 1/4 निकालेंगे. तो अभी कितनी बची है ये, इस पहले तो पता करो कि इसका 1/4 कितना होगा. फॉर सेकेंड टाइम के लिए हमारे पास कितना बचेगा? 3V/4 ऑफ 1/4. सो इट विल बी 3V/16. 3V/16, यानी कि सेकेंड टाइम में से ये जो मेरी बची हुई थी उसमें से मैंने इतना निकाल दिया. तो कितना बचा? सेकेंड टाइम में जब मैंने 1/4 निकाला तो मेरे पास इतना बचा. ठीक है, इसका मैं 1/4 निकालूंगी, मतलब कि टोटल में कितना निकाल रही हूँ? इतना. तो 3V/4 में से मैं 3V/16 निकाल लूंगी. राइट, तो अगर मैं निकालती हूँ तो क्या बचेगा? LCM will be 16, 4, 4, 3 12V minus 3V. So the answer will be 9V/16. फर्स्ट टाइम पे इतना बचा, सेकेंड टाइम पे इतना बचा. अब इसका भी 1/4 निकलेगा, क्योंकि जब भी वैक्यूम पंप जा रहा है, वैक्यूम पंप से एयर निकाली जा रही है, तो जितनी बची है उसका हमेशा 1/4 V, मतलब 1/4 पार्ट निकल रहा है. तो इतना बचा. अब इसका 1/4 कितना होगा? 9V फॉर थर्ड टाइम के लिए मैं बात कर रही हूँ. फॉर थर्ड टाइम 9V/16 ऑफ 1/4. तो इसका आंसर क्या आएगा? 64. 9V/64, इतनी एयर मुझे किस में से निकालनी है? इसमें से निकालनी है, क्योंकि इतनी बची. अब मैं इसका 1/4 निकाल रही हूँ, यानी कि इतना निकाल रही हूँ. तो कितना आएगा? 9V/16 माइनस 9V/64
कितना बचेगा 64, 4 9 जा 36v minus 9v means it will be 27v upon 64. ओके 27v अपॉन 64 ये मेरा बचेगा थर्ड टाइम में, राइट। अब इसका भी 1/4 निकलेगा, यानी कि इसका भी आप बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप 1/4 करके निकालेंगे, ठीक है। अब इसको लिख के देखते हैं प्रॉपरली कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे और ये जो सिचुएशन है ये एपी बनाती है या नहीं बनाती है। ओके, तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द, सो लेट दी, ओके अच्छे से लिखते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू v, let the amount of air is equals to v, so 1/4 of the v removes for the first time, okay, then रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा हमारा, अगर मैं 1/अमाउंट ऑफ एयर विल बी, आपको मैंने सोल्यूशन यहाँ कर दिया, अब मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, अगर आपको लगता है तो आप एक एक करके यहाँ पे सोल्यूशन करके समझा सकते हैं। तो मैंने अगर v का 1/4 भी निकाल दिया तो मेरा बचेगा 3v/4, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द सेकेंड टाइम it will be what, यहाँ पे लिख देना remaining amount of air for the second time, remaining amount of air for the second time, it will be what, 9v/16. For third time it will be 27v/64। तो ये तो हमें डेटा मिल गया हमारा। अब हमें पता है कि जब हमें डेटा मिल जाता है तो उसको हम चेक करते हैं कि ये एपी बना रहा है या नहीं। सो फॉर दिस द सेम कंडीशन दैट वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन आवर प्रीवियस पॉइंट मींस वी हैव टू सबट्रैक्ट। सो दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4। So for AP, यहाँ पे लिख लेना, for AP A2 minus A1 should be equals to A3 minus A2 should be equal to A4 minus A3। ओके, तो देखते हैं कि इक्वल होता है या नहीं। सो A1 minus A2, sorry, A2 minus A1, it should be A2 minus A1, A2 minus A1, okay, so A2 minus A1 यानी कि 3/4v minus v, क्या आ रहा है हमारा आंसर, okay, let me rub this part so that my solution will be very much clear to you all here. Let me rub it first and the remaining solution I'll do it here so that it will be clear to you all, okay. So let me do the solution part here. 3v/4 minus v. So what the answer will come here? 4. It will be 3v minus 4v. Okay. So it will be minus v/4. Okay. ठीक है, चलिए अभी it should be equals to what, a3 minus a2 means 9v/16 minus 3v/4. Let's see, 9v/16 minus 3v/4. So 16, 9v, 4 3 जा 12v. Okay. Oh my God. So it will be minus 3/16v. अब आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वल आ ही नहीं रहा है, ये इक्वल आ ही नहीं रहा है।
तो अगर हमें पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप में कि यही दो इक्वल नहीं है तो हमें आगे क्या करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज फॉर AP ऑल द कंडीशंस हियर मस्ट बी इक्वल। हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जब ये निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो -b/4 आया, और जब मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो -3/16 आया, विच इज टोटली नॉट इक्वल। ओके, तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंडीशन हमारी यहीं पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो आगे हम लोग सोल्यूशन नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे ही डिक्लेयर कर देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, फॉर्म ऑफ AP। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सोल्यूशन थोड़ा सा हार्ड है इसका, आई नो इट इज नॉट एक्चुअली वेरी मच इजी, बट यस करके आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारे कंसेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सो दिस इज पॉइंट नंबर 3 which says the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मीन्स अगर हम एक वेल को डिग कर रहे हैं तो 1 मीटर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर पे 150 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, और बोला है कि हर एक मीटर पे मीन्स सब्सिक्वेंट मीटर पर हमारा 50-50 रुपए और उसमें ऐड होगा। तो अब हमें बताना है कि इज दिस सिचुएशन मेक AP। लेट्स सी, cost of digging for 1 meter is equals to ₹150, right? For 2 meter it will be ₹150 plus 50 रुपीज और ऐड होगा, हर एक मीटर पे और एक और ऐड होगा, तो इट विल बी ₹200। ओके, for 3 meter 150 plus 50 plus 50 और डायरेक्टली यू कैन राइट ₹200। मतलब यहाँ तक हमने 2 मीटर खोदा, अब इसके बाद आप और खोदोगे तो और 50 रुपए ऐड होगा, जितना हो गया उसमें, तो और 50 रुपए मैं ऐड करूंगी तो मेरे को मिल जाएंगे 250। ओके, इसके बाद भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट लेट्स टेक आउट वन मोर। सो फॉर 4 meter it will be ₹250 plus 50 more, so it will be ₹300, right? So if this is A1, this is A2, this is A3 and this is A4, so for AP के लिए we know A2 minus A1 should be equals to A3 minus A2 should be equals to A4 minus A3. Let's see what is A2. It is 200 minus 150. Fine. 250 minus 200. Okay. Then 300 minus 250. So 200 minus 150 it will give you 50. 250 minus 200 50 and here 50. So here we can easily find out that the common difference is 50, and yes, if the common difference is equal, hence this condition or this situation make an AP. So hence the common difference is equal, this situation forms an AP। इजी था, समझ में आ गया क्या किया है हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 which says the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब हर साल का हमें अमाउंट बताना है, हमने कितना डिपॉजिट किया हुआ है, 10,000 डिपॉजिट किया हुआ है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको प्रिंसिपल पता है 10,000 है, ठीक है, बेसिक अमाउंट दिया हुआ है, रेट हमें पता ही है 8% का है,
टाइम फर्स्ट ईयर में 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है, और जब हम आगे के ईयर्स निकालेंगे तो हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो फॉर एवरी ईयर द मनी विल बी फॉर्मूला आपको पता है P प्लस 1/R, P प्लस P ब्रैकेट में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पर N आता है, दैट इज टाइम। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल राइट yes, so it will be 10,000, okay, 1 plus 8/100 फर्स्ट ईयर के लिए, राइट। जब आप सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे तो याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ओके। तो जो इसमें निकला था इंटरेस्ट, उसका भी अगर हम और इंटरेस्ट निकालेंगे तो मतलब अगर हम सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ईयर में क्या आएगा, 2 ईयर कंबाइंड होता है। फॉर थर्ड ईयर इट विल बी 1 प्लस 8/100 3, ठीक है। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी वैल्यू कुछ और निकलेगी बिकॉज इसका पावर 1 है, इसकी वैल्यू कुछ और निकलेगी बिकॉज इसका पावर 2 है, इसकी वैल्यू कुछ और निकलेगी बिकॉज यहाँ पर जो टाइम है इट्स 3 years। तो क्लियरली इट इज सीन दैट द कॉमन डिफरेंस विल नॉट बी सेम, सो it will not form an AP. Clearly we can see the common difference is not same. We can see the common difference is not same, hence the situation will not form an AP. I hope clear है, easy है। देखो AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए और हमें पता है कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली AP नहीं बनाएगा। ये अभी इस बेसिकली इस एक्सरसाइज के लिए आपकी बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए और इसके बेस पे हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।